Assalamu alaikum. Today I am going to discuss the topic integrated pest management. What is integrated pest management? It is actually the collection of all the techniques used for controlling the pest. History of IPM or integrated pest management. Shortly after the World War II, when synthetic insecticides became widely available, entomologists in the California developed the concept of supervised insect control. Actually, why this is necessary to develop the IPM or integrated pest management? Because insecticides have various issues regarding the health, environment, etc., and resistance in the insects, etc., etc. So it was developed shortly after the World War II. In the United States, IPM was formulated into the national policy in the February 1972 when the President Richard Nixon directed federal agencies to take steps to advance the concept and the applications of the IPM in the relevant sector. In 1979, President Jimmy Carter established an interagency IPM coordinating committee to ensure the development and implementation of the IPM practices. Requirements of IPM, why it is necessary. Chemical pesticides such as DDT, it was a pesticide, but now DDT is banned. I think it was banned in 1916. It can why it was banned, वो या आप कह लें कि इसकी रीज़न क्या है कि आप हम इसे यूज़ क्यों नहीं करते. It can accumulate in the fatty tissue of the animals and affect बर्ड रिप्रोडक्शन. एनिमल के फैटी टिश्यू में इकट्ठी हो जाएगी, डेफिनेटली वहाँ भी डैमेज करेगी और बर्ड्स की रिप्रोडक्शन को इफेक्ट करेगी. तो बर्ड्स की जब रिप्रोडक्शन इफेक्ट होना शुरू हो जाएगी, कुछ बर्ड्स ऐसे होंगे जिसको ह्यूमन एज अ फूड यूज़ कर रहा है और बाकी भी इकोलॉजी डिस्टर्ब होती है अगर बर्ड्स की रिप्रोडक्शन इफेक्ट हो जाए तो. इंसेक्ट्स कैन बिकम रेजिस्टेंट टू द केमिकल पेस्टिसाइड्स. अप्रॉक्सीमेटली 500 स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स आर रेजिस्टेंट to one or more pesticides. Insects gained resistance with the passage of time against these chemicals, and approximately 500 species are resistant. Due to exclusion, it leads to transmit a large number of plant diseases worldwide. For example, late rust of the coffee, late blight of potato, etc. Impact of overuse of chemical pesticide leading to endangered species of the birds. अच्छा, अब इसमें क्योंकि आप जो है जो भी पेस्ट है उसको टोटली एक्सक्लूड कर देते हैं और समटाइम ये होता है कि पेस्टिसाइड्स ब्रॉड स्पेक्ट्रम भी होती हैं, वो सिर्फ एक आपकी डिज़ायर्ड पेस्ट पे काम नहीं करती बल्कि इर्द गिर्द और भी जितने भी इंसेक्ट्स होंगे हो सकता है वो यूज़फुल भी हो, उनको भी किल कर लेती है. तो इसकी वजह से बीमारियाँ पूरी दुनिया में फैलती हैं जिनमें लेट लीफ रस्ट ऑफ कॉफ़ी एंड लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है. This is the leaf rust of coffee, and this is the loose smut on the wheat. लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो में जो फॉलिएज है या पत्ते हैं वो ब्लैक कलर के हो जाएंगे और इनके ट्यूबर्स ये पोटैटो के इफ़ेक्ट होने शुरू हो जाएंगे और ह्यूमन पोटैटो ट्यूबर को ही एज अ फूड लेता है. जब वो इफ़ेक्ट हो गए तो ह्यूमन के तो किसी काम का नहीं रहा वो प्लांट. इसी तरह केमिकल यूज़ अगर आप एक्स्ट्रा यूज़ करते हैं ये क्रॉप्स के ऊपर तो वो बर्ड स्पीशीज़ को भी ख़तरे में डाल देता है. Basic components of IPM. An American IPM system designed around 6 basic components, and these are as follows. Acceptable pest level. इस पेस्ट लेवल पे आपने पेस्ट को कंट्रोल करना होता है, उसकी एरेडिकेशन या उसे ख़त्म नहीं करना होता, यानी इस लेवल से बढ़ ना पाए. प्रिवेंटिव कल्चरल प्रैक्टिसिटिक्स. जब आप कल्चर करते हैं क्रॉप्स को तो आप कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस करते हैं जो पेस्ट अटैक से बचाए. मॉनिटर करना, मैकेनिकल कंट्रोल, बायोलॉजिकल कंट्रोल, रिस्पॉन्सिबल पेस्टिसाइड यूज़. ये नहीं भी जितना दिल किया पेस्टिसाइड उतनी की उतनी क्रॉप में डाल दी.
What is IPM? Ecosystem-based strategy that focus on long-term prevention of pests on their damage through a combination of techniques such as biological control, habitat manipulation, modification of cultural practices, and use of resistant varieties. इसमें आप variety of techniques को use करते हैं, आप resistant varieties use करेंगे, cultural practices में आप changing कर देंगे. आपने suppose के अगर एक क्रॉप है उसके ऊपर इंसेक्ट, उसकी जो मैच्योर क्रॉप है उसके ऊपर इंसेक्ट को ये अटैक करता है, ठीक है, और वो मैच्योर होती है जून में. आप आप उसके जेनेटिक में ये वेरिएशन ऐसे कर दें कि वो मैच्योर हो जून की बजाय मार्च में हो जाए, ठीक है. तो यानी जो इंसेक्ट का अटैकिंग टाइम पीरियड था वो तो ख़त्म हो गया. हैबिटेट मैनिपुलेट करते हैं, बायोलॉजिकली कंट्रोल करते हैं, किसी और लिविंग एजेंट के ज़रिए आप कंट्रोल करेंगे. Another name of the IPM is the IDM, Integrated Disease Management. It has three principles or approaches: direct action against the pathogen, genetic modification of the host को modify कर देंगे, modification of environment to make it unfavorable for host. आप environment को modify कर दें ताकि वो host के लिए modify ही favorable ही ना रहे. Integrated pest management में physical, cultural, chemical और biological practices आ जाती हैं. IPM वर्क कैसे करता है? थ्रू मैकेनिकल कंट्रोल. इट कैन बी अचीव थ्रू एरेडिकेशन. इसमें एरेडिकेशन की जाती है. क्वारंटाइन. अच्छा, क्वारंटाइन का कॉन्सेप्ट पहले तो इतना ज़्यादा क्लियर नहीं था, लेकिन अब क्योंकि कोरोना वायरस की पेंडेमिक ने पूरी की पूरी दुनिया को इफ़ेक्ट किया हुआ है, तो ये क्वारंटाइन का कॉन्सेप्ट तो आपको अच्छे से पता है कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए जो मूवमेंट है उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं. अब ये क्वारंटाइन का जो कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ ह्यूमन पे अप्लाई नहीं होता, बल्कि ये गुड्स पे भी अप्लाई होता है. यानी ये मुल्कों के दरमियान जो चीज़ें आ जा रही होती हैं उनके दरमियान भी उन पे भी होता है. जैसे हम कहते हैं ना कि डेंगू वायरस हमारे पास, ये डेंगू मच्छर कहाँ से है? पाकिस्तान में नहीं था, इजिप्ट वगैरह इन इलाकों से आया. तो वहाँ से जी कोई टायर आए थे, उन टायरों के अंदर वो डेंगू मच्छर आ गया. तो अगर उन्हें क्वारंटाइन किया जाता या उनकी अच्छे से चेकिंग की जाती तो वो पाकिस्तान के अंदर मच्छर ना फैलता. अदर मेथड्स दैट आर यूज फॉर द एरेडिकेशन पर्पस इंक्लूड क्रॉप रोटेशन करें, फील्ड सैनिटेशन, सफाई सुथराई का ख्याल रखें, केमिकल एंड हीट ट्रीटमेंट, एरेडिकेशन ऑफ अल्टरनेट होस्ट प्रोटेक्शन. स्मॉल स्केल एरेडिकेशन आर कैरिड इन द लोकल ट्रैक्स टू कंट्रोल वेरियस डिजीजेज लाइक लूज स्मट ऑफ वीट. ये है लूज स्मट ऑफ वीट. इसमें ये जो सिट्टा होता है ऐसे बिल्कुल ब्लैक कलर का हो जाता है. कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले. ये ऐसे इसमें बार्ले का स्मट ख़राब हो जाएगा ऑस्ट्रेलियाको हॉरिडाई फंगस की वजह से. उसके बाद है रेड रॉट ऑफ शुगर कैन. फिर है विल्ट ऑफ अरहर एंड मैनी अदर्स. ये अरहर की दाल होती है, चने की दाल से मिलती जुलती तरह चूड़ी होती है, ये इस तरह से होती है. Mechanically, the insects and pests can be controlled by using the traps. अब आप इंसेक्ट्स वगैरह को तो ट्रैप लगा के भी ये कैप्चर कर सकते हैं. ये ट्रैप है और ये जापानीज़ बीटल है. नेक्स्ट इज़ द बायोलॉजिकल कंट्रोल. इस मेथड में आप इन्वायरमेंट को कोई भी थ्रेट नहीं देते हैं किसी भी केमिकल के यूज़ से. ये इतना एक्सपेंसिव होता है, इस पर ख़र्च इतना नहीं आता, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है. इसमें वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई, बाज़ औक़ात इंसेक्ट्स को यूज़ करते हैं. माइको वायरस, माइको का वर्ड जहाँ भी आएगा ये वर्ड फंगस के लिए यूज़ होता है. ऐसी फंजाई जिसके अंदर वायरस और माइको पैरासाइट्स, myconematicides. Besides this, showing resistance varieties also play a crucial role in the biological control. आप पैथोजन के अगेंस्ट दो तरह की रेजिस्टेंस अपने प्लांट्स में करवा सकते हो, मोनोजेनिक और पॉलीजेनिक. मोनोजेनिक में आप प्लांट्स के अंदर सिंगल जीन चेंज करेंगे जिसकी वजह से उसके अंदर रेजिस्टेंस आ जाएगी, और पॉलीजेनिक में काफ़ी जीन्स चेंज करेंगे जिसकी वजह से प्लांट रेजिस्टेंट हो जाएगा अगेंस्ट द पैरासाइट्स. नेचुरल एनिमी जो पेस्ट के है वो लेडी बग है और ये एफिड्स पे फीड करती हैं. देखें ये दिस इज़ द लेडी बग और ये हमारे इन्वायरमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन है.